यस, सो इलस्ट्रेशन 1 हो गया है, करेक्ट। एंड ये भी हुआ था कि इक्विटी शेयर्स कब इशू किए हैं, कौन से डेट से हमें वेटेड एवरेज में कैलकुलेट करना है। ओके, आपके पास बुक है तो अंडरलाइन करते जाओ। इक्विटी शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज फॉर कैश अगर है तो व्हेन कैश इज रिसीवेबल को अंडरलाइन करो। एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट अगर है, कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, तो उस कब करना है, डेट ऑफ कन्वर्जन। इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन लिeu ऑफ मतलब, इन लिeu ऑफ मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ मतलब रिप्लेसमेंट। ओके, सो in place of interest and principal we are giving equity shares, we are issuing equity shares. In that case, as of the date interest ceases to accrue, correct. Then exchange for the settlement of a liability of the enterprise, date of settlement becomes effective. Then as a consideration for acquisition of asset other than cash, so date on which the acquisition is recognized. ओके, आपको यही वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। एक्विजिशन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स नहीं चलता है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स की जगह क्या लिखना है, इज रिकॉग्नाइज्ड। ओके, डेट ऑफ सेटलमेंट बिकम्स इफेक्टिव, इंटरेस्ट सीजेस टू एक्रू, इंटरेस्ट सीजेस टू एक्रू ही लिखना है। देन इशूड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू द एंटरप्राइज are included as the services are rendered, and in other case आपको terms and conditions चेक करने हैं of specific contract। यहाँ तक हुआ था। Then shares issued in a scheme of amalgamation, so equity shares issued as part of the consideration in an amalgamation in the nature of purchase are included in the weighted average number of shares as of the date of acquisition, because the transferee incorporates the results of the operations of the transferor into its statement of profit and loss as from the date of acquisition. So amalgamation का accounting standard number पता है आपको, correct, AS14 is related to amalgamation. So there are two types of amalgamation. One is amalgamation in the nature of purchase and second is amalgamation in the nature of merger. Okay, so अगर 5 कंडीशंस AS14 में दिए हैं वो फुलफिल किए तो वो होता है मर्जर, वो फुलफिल नहीं किए तो परचेस। ओके, परचेस मतलब आप जैसे फिक्स एसेट्स परचेस करते हो वैसे आपने बिजनेस परचेस किया है, एंड मर्जर मतलब पूरा मर्ज हो रहा है, ऐसे याद रखो। ओके, सो अगर अमलगमेशन का नेचर परचेस वाला है तो उस केस में क्या होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन लेनी है, उस डेट से आप इंक्लूड करोगे इक्विटी शेयर्स को इन द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, एंड इक्विटी शेयर्स इशूड एज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन in an amalgamation in the nature of merger are included in the calculation of weighted average number of shares from the beginning of the reporting period, because the financial statements of the combined enterprise for the reporting period are prepared as if the combined entity had existed from the beginning of the reporting period. Therefore, the number of equity shares used for the calculation of basic earnings per share in an amalgamation in the nature of merger is the aggregate of weighted average number of shares of the combined enterprises adjusted to the equivalent shares of the enterprise whose shares are outstanding after amalgamation. So एक होता है ट्रांसफरर कंपनी, दूसरी होती है ट्रांसफरी कंपनी अमलगमेशन में। सो ट्रांसफरर कंपनी मतलब जिसने एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए, सो उसका एग्जिस्टेंस अभी नहीं रहेगा, एग्जिस्टेंस ट्रांसफरी कंपनी का रहेगा जिसको वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिले हैं। तो इक्विटी शेयर्स किसके रहेंगे और किसके नहीं रहेंगे? हाँ, ट्रांसफरी के रहेंगे, ट्रांसफरर के नहीं रहेंगे, वो कंपनी ही नहीं है ना।
सो एसेट्स लायबिलिटीज उन्होंने दे दिए ट्रांसफरी को, एंड ट्रांसफरी कंपनी ने क्या दिया फिर इनको, इक्विटी शेयर्स दिए और कैश वगैरह। ओके, सो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि therefore the number of equity shares used for the calculation of basic EPS in an amalgamation in the nature of merger is the aggregate of the weighted average number of shares of the combined enterprises adjusted to equivalent shares of the enterprise whose shares are outstanding। तो किसके शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे आफ्टर अमलगमेशन, ट्रांसफरी कंपनी के, ठीक है। सो मर्जर के केस में क्या करना है, आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड लेना है, एंड परचेज के केस में डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो क्या करती है, उसके P&L में जो ट्रांसफरर कंपनी के प्रॉफिट्स है, रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट और लॉस, सो वो ट्रांसफरी कब से इनकॉर्पोरेट करती है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, इसलिए परचेज के केस में डेट ऑफ एक्विजिशन एंड मर्जर के केस में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स आर ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन of an equity share to the extent that they were entitled to participate in dividends relative to a fully paid equity shares during the reporting period। जो partly paid shares है and if they are entitled to participate in dividend, तो वो क्या करना है आपको, रिलेटिवली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स के साथ उसको मर्ज करना है। मतलब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, बट मेरा और एक क्वेश्चन है कि पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स है एंड दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, तो वो कहाँ पर जाते हैं, कल देखा था हमने, पार्टली पेड शेयर्स है इक्विटी शेयर्स एंड दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, तो वो कैलकुलेशन में लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है। They are called as potential equity shares। डाइल्यूटिव EPS के लिए जो लगते हैं कि इनमें पोटेंशियल है ना टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, बॉक्स में था, देखो बॉक्स में, कहाँ पे है वो बॉक्स, यहाँ पे, नॉट एंटाइटल्ड। एंड पोटेंशियल में क्या क्या आता है देखो, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, प्रेफरेंसेस, शेयर, वारंट्स, ईसॉप, ऑप्शंस एंड कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स, एंड ये भी पार्टली पेड शेयर्स विच आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। अभी यहाँ पर हमें कौन से लेने हैं, पार्टली पेड शेयर्स विच आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। सो कैलकुलेट वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, डेट दी है आपको 1 Jan, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब इनका ईयर एंड है 31 December, नंबर ऑफ शेयर्स 1800 है, फेस वैल्यू 10, पेड अप भी 10, एंड 31 October को आपने और शेयर्स इशू किए 600, बट उसकी फेस वैल्यू 10 है, पेड अप इज 5। एज्यूमिंग दैट द पार्टली पेड शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड to the extent of amount paid, number of partly paid equity shares would be taken as 300 for the purpose of calculation of EPS। so देखो 600 शेयर्स पे 5 रुपए आ गए हैं, मतलब आपको 3000 रुपीज रिसीव हुए हैं। सो 3000 रुपीज रिसीव हुए आपको, एंड एक शेयर की प्राइस अगर 10 है फेस वैल्यू, तो आपने एक्चुअली 300 शेयर्स ही एज गुड एज इशू किए। सो टोटल कितने हो गए, 1800 12 मंथ्स के लिए थे, एंड ये 300 कितने मंथ्स के लिए थे, 2 मंथ्स, हाँ, तो ऐसे करके वेटेड एवरेज 1850। ठीक है। Where an enterprise has equity shares of different nominal values but with the same dividend rights, the number of equity shares is calculated by converting all such equity shares into equivalent number of shares of the same nominal value। So different nominal values मतलब कुछ शेयर्स की फेस वैल्यू 10 है, कुछ शेयर्स की 50 है, कुछ शेयर्स की 100 है,
तो आपको सेम करना है, तो हम सब 10 में करेंगे। सो जो 50 फेस वैल्यू वाला एक शेयर है उसको हम मानेंगे 5 शेयर से, जो 100 फेस वैल्यू वाले शेयर है उनको मानेंगे 10 शेयर से। मतलब उनका एक शेयर भी आपने ऐड किया, मतलब 5 और 10 ऐड करने हैं, नंबर्स उसका 5 और 10 लेने, ठीक है, क्योंकि उनके डिविडेंड राइट सेम है। डिविडेंड राइट सेम है मतलब उनका अर्निंग्स सेम हुआ ना, इसलिए डिविडेंड राइट्स अलग होंगे तो आपको अलग अलग ही करना है। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा था बेसिक ईपीएस मोर देन 1 हो सकता है क्या? यस, इन अदर वर्ड्स देयर विल बी मोर देन 1 बेसिक ईपीएस if an enterprise has more than 1 class of equity shares. Net profit or loss for the period is apportioned over the different classes of shares in accordance with their dividend rights. ओके, सो डिविडेंड राइट्स अगर सबके सेम है तो एक ही ईपीएस होगा, अगर डिफरेंट डिविडेंड राइट्स है तो जितने डिफरेंट है उतने ईपीएस करने हैं आपको, ठीक है। नाउ कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर ये क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर है ना ये। सो इक्विटी शेयर्स विच आर इशुएबल अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टन कंडीशंस resulting from contractual arrangements, which are known as contingently issuable shares, are considered outstanding and included in the computation of basic EPS from the date when all the necessary conditions under the contract have been satisfied. So इसकी डेट अंडरलाइन करो, कब से ये कंसिडर करने हैं? फ्रॉम द डेट all the conditions have been satisfied. Now bonus issue, share split and right issue, इनका क्या करना है? Equity shares may be issued or the number of shares outstanding may be reduced without a corresponding change in the resources. For example, a bonus issue, a bonus element in any other issue. For example, a bonus element in right issue to existing shareholders. So bonus issue आपको पता है क्या होता है? हमारे पास जो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो जनरल रिजर्व के ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स ही है। सो हम जनरल रिजर्व से उनको शेयर्स इशू करते हैं, सो वो बोनस शेयर्स हो गए। उनसे हम कैश लेने वाले हैं क्या? नहीं। सो क्या होगा? उनके पास 10 शेयर्स है एंड 1:1 बोनस इशू हमने उस रेशो में इशू किया है, तो और 10 शेयर्स फ्री में मिलने वाले हैं उनको। सो हम क्या कर रहे हैं? उनको जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो हम डिविडेंड फॉर्म में देने की जगह उनको और शेयर्स फ्री में इशू कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? बोनस इशू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं बट विदाउट करस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेस। ओके, सो रिसोर्सेस कुछ चेंज नहीं हुए। दोनों शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर ही आता है बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल भी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर जो जनरल रिजर्व था वो वहां से शेयर कैपिटल में जाएगा ना, इतना ही होगा जब बोनस शेयर्स इशू होंगे। सो शेयर होल्डर्स फंड अल्टीमेटली उतना ही रहने वाला है। सो देयर इज नो करस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेस, ठीक है। आपको पहले वो जनरल रिजर्व से मिल रही थी अमाउंट, अभी वही अमाउंट जनरल रिजर्व से कम हो गई एंड शेयर कैपिटल में आ गई। सेकेंड इज बोनस एलिमेंट। सो राइट इशू आपको पता है क्या? राइट मतलब लेफ्ट राइट वाला राइट नहीं, राइट मतलब अधिकार, हक वाला राइट। तो राइट, इसमें क्या राइट है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको राइट है कि आपको कम प्राइस में शेयर्स इशू होंगे। सो कम प्राइस में हुए मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो इसलिए कंपनी आपको 6 रुपीज में दे रही है, तो वो 4 रुपीज जो फ्री में मिला दैट इज बोनस एलिमेंट इन द राइट इशू। ओके, तो वो एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है उन्होंने। तो फिर राइट इशू में क्या होता है कि बोनस एलिमेंट दिया मतलब 6 रुपए आपसे लिए एंड 4 रुपए कहाँ से आएंगे कंपनी को? जनरल रिजर्व से। सो देयर इज अगेन नो चेंज इन द करस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज। तीसरा क्या है? शेयर स्प्लिट में कुछ नहीं होता। एक शेयर आपके पास है जो 100 रुपीज का है, अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि 100 रुपीज की जगह हम आपको शेयर स्प्लिट करके देंगे
सो एक शेयर बनेगा, एक शेयर की फेस वैल्यू बनेगी 10 रुपए। सो आपके पास एक शेयर है अभी 100 रुपीज का, तो अभी आपके पास 10 शेयर्स हो जाएंगे, स्प्लिट कर दिया। सो अगेन देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेज। सो ऐसे स्प्लिट क्यों करते हैं कि अगर कंपनी को बहुत शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स चाहिए, तो एक शेयर 100 रुपीज का है तो वो सबको अफोर्डेबल नहीं है। ओके, जो भी इन्वेस्टर्स है शेयर मार्केट में, नए शेयर होल्डर्स आए, यंगस्टर्स आए जिनके पास अभी इनकम सोर्स नहीं है, बट आपने देखा रहे इनका एक शेयर 10 रुपए का ही है, चलो 100 रुपए के तो शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो एक शेयर 10 रुपए का है तो इन्वेस्टर्स बढ़ जाएंगे ना, बट एक शेयर ही इनका 100 का है और मुझे ऐसे 10 शेयर्स लेने हैं, तो 1000 की इन्वेस्टमेंट, और मुझे पता नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्योंकि मेरा स्टार्ट है अभी शेयर मार्केट में। सो शेयर स्प्लिट उसके लिए करते हैं। ओके, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, बट आपको समझ में आया होगा कि ये डिसीजन लेने के लिए शेयर स्प्लिट का कितना डिस्कशन मैनेजमेंट में होता होगा, मार्केट स्टडी वगैरह सब होता होगा। ठीक है, एंड रिवर्स ऑफ शेयर स्प्लिट क्या होगा बताओ? अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो उसको 100 में कन्वर्ट कर, तो आपके पास 10 शेयर्स है, तो हम अभी बताएंगे कि वो एक ही शेयर है। ओके, वो रिवर्स हुआ। सो रिवर्स ऑफ शेयर स्प्लिट, बोनस एलिमेंट इन राइट इशू, बोनस इशू, इस सबसे क्या हो रहा है? देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेस, मतलब कैपिटल। करेक्ट। सो इन केस ऑफ बोनस इशू और अ शेयर स्प्लिट, इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर नो एडिशनल consideration. Therefore, the number of equity shares outstanding is increased without an increase in resources. The number of equity shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of equity shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period reported. Means along with the impact to current year adjustment, it will also impact the calculation of EPS of the last year retrospectively. So bonus element अगर कुछ है, बोनस इशू है, तो आपको क्या एज्यूम करना है? वो फर्स्ट डे को ही हुआ है। ओके, बीच में कभी भी हुआ क्या और फर्स्ट डे को हुआ क्या फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेस में चेंज ही नहीं है। ओके, एंड आपको फिर क्या करना पड़ेगा? बोनस इशू अगर है, ओके, तो आपको अभी समझ में आ गया बोनस इशू या शेयर स्प्लिट वगैरह, ये ABCD में से कोई भी है तो रिसोर्सेस में चेंज नहीं होता। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो आपको EPS कैलकुलेट करना है, तो ये बोनस इशू का जो इफेक्ट है वो फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब आपने बोनस शेयर्स इशू करने के बाद आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, वो बिगिनिंग से ही बढ़े हैं ऐसे समझो, मतलब वो 12 मंथ्स के लिए थे शेयर्स आपके पास। एंड वो करते वक्त आपको और एक करना है कि जो प्रीवियस ईयर का भी हम कंपैरिजन दिखाते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर का EPS भी रीएडजस्ट करना है आपको। ओके, सो तो ही क्या होगा? कंपैरिजन करेक्ट होगा। आपका 1:1 है बोनस इशू का रेशो, तो लास्ट ईयर आपके पास 1 लाख शेयर्स आपने इशू किए थे, करंट ईयर में आपने हो गए वो 2 लाख हो गए बिकॉज ऑफ बोनस इशू। तो वो कंपैरिजन कैसे होगा? प्रीवियस ईयर का EPS दिखाते वक्त डिवीजन में डिनोमिनेटर में 1 लाख है, इधर 2 लाख है। ओके, बट रिसोर्सेस कुछ बढ़ नहीं गए। 1 लाख का 2 लाख जब नंबर ऑफ शेयर्स हुए, तो आपको वो एडिशनल 1 लाख शेयर से पैसे आए थे क्या? कुछ नहीं। सो वो डिवाइड आपने लास्ट ईयर का जो डिनोमिनेटर 1 लाख लिया है एंड अभी का आप 2 लाख ले रहे हो, तो वो कंपैरिजन गलत हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर का भी आपको 2 लाख करना। समझा वो बोल्ड क्यों किया है? ओके, सो क्या लिखा है उन्होंने? द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर द इवेंट इज एडजस्टेड फॉर द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग as if the event had occurred at the beginning of the earliest period reported. वो इवेंट कब हुआ है? एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर नहीं, एट द बिगिनिंग ऑफ अर्लीएस्ट पीरियड रिपोर्टेड।
सो अर्लीस्ट मतलब सबसे पहला पीरियड कौन सा रिपोर्ट करते हैं हम, पिछला और करंट। सो करंट बाद में आता है, अर्लियर कौन सा आता है, पिछला। सो प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में बोनस इशू हुआ है, ऐसे एज्यूम करना है आपको, ठीक है। मीन्स along with the impact to the current year adjustment, it will also impact the calculation of EPS of last year retrospectively. So दोनों EPS पे impact होने वाला है। For example, upon a 2-for-1 bonus issue, मतलब एक शेयर आपके पास है, हाँ सॉरी, आप upon a 2-for-1, हाँ 2 शेयर पे 1 शेयर, the number of shares outstanding prior to the issue is multiplied by a factor of 3 to obtain the new total number of shares, or by a factor of 2 to obtain number of additional shares. 2 for a 1 शेयर के लिए 2 बोनस है, 2 for 1 शेयर, ओके। सो अभी करंट ईयर में 3 शेयर्स हो जाएंगे ना जिसके पास 1 शेयर था, एंड a factor of 3 to obtain a new total number of shares, or by a factor of 2 to obtain number of additional shares. So illustration 3 उस पे ही है, calculate basic EPS. फर्स्ट नेट प्रॉफिट उन्होंने लास्ट ईयर का दिया है, करंट ईयर का भी दिया है, आपको रीजन समझा होगा क्यों लास्ट ईयर का दिया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग अंटिल 30 सितंबर 2002, बोनस इशू कब हुआ है, 1 अक्टूबर 2002, was 2 equity shares for each equity share outstanding at 30th September 2002. So number of bonus issue, 2 शेयर्स मिलने वाले हैं एक को, सो 20 लाख शेयर्स है तो कितने मिलेंगे, 40 लाख मिलेंगे। सो अर्निंग्स पर शेयर फॉर द करंट ईयर, न्यूमरेटर में तो क्या है अर्निंग 60 लाख, एंड अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 20 लाख प्लस 40 लाख 60, मतलब 1 रुपया EPS, 60 लाख अपॉन 60 लाख, ओके। अभी एडजस्टेड अर्निंग्स पर शेयर फॉर द ईयर 2001, न्यूमरेटर में 2001 का प्रॉफिट लो 18 लाख 0.3, हाँ, क्योंकि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, बोनस इशू एक्चुअल में 1 अक्टूबर 2002 को हुआ है, बट वो हम एज्यूम कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड, ओके। सो इसलिए उसका भी डिवीजन डिनोमिनेटर आपको 60 लाख ही लेना है, करंट ईयर का भी 60 लाख लेना है, प्रीवियस ईयर का 20 लाख नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर का भी 60 लाख है तो ही करेक्ट आएगा, ओके। अगर आप 20 लाख लेते हो प्रीवियस ईयर का तो वो कितना हो रहा है, 0.9 ना, .9, ओके। सो लोगों को क्या लगेगा, अरे यहाँ पे तो लास्ट ईयर 18 लाख था प्रॉफिट तब 0.9 मिल रहा था, अभी 18 लाख का 60 लाख हो गया और 0.9 का 1 ही हो गया, ओके। सो 3 टाइम्स तो अर्निंग्स बढ़ गए ना, 18 3 जा 54, उसके भी ऊपर है 60 लाख। सो अगर मेरा अर्निंग 3 टाइम्स से भी ऊपर बढ़ गया है टोटल अर्निंग, बट मेरा EPS तो 0.9 से 1 रुपी हो गया, ऐसे कंपैरिजन करेंगे लोग, ओके। सो इसलिए हम प्रीवियस ईयर भी डिनोमिनेटर में विद बोनस 60 लाख लेंगे, सो 0.30 का वो 1 हो गया, ओके। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सो 18 लाख का अगर आपका 60 लाख अर्निंग हुआ है तो उसी रेशो में आपको EPS भी बढ़ेगा ना आपका, 0.3 का 1 हो गया, 0.9 से 1 एंड 0.3 से 1, हाँ समझ में आ गया क्यों ऐसे करना है। सिंस द बोनस इशू इज एन इशू विदाउट कंसिडरेशन, द इशू इज ट्रीटेड एज इफ इट हैड ऑकर्ड प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2001, द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड है वो 2001। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स
विल नॉट यूजुअली गिव राइज टू बोनस एलिमेंट. ओके, अगर आप डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स में, तो उसमें बोनस एलिमेंट कुछ नहीं है. ओके, क्योंकि आपको जो डिबेंचर्स की अमाउंट थी, आपने डिबेंचर्स इशू किए थे. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का डिबेंचर आपने इशू किया था, अभी उसका रिडम्पशन का टाइम आया. इसका मतलब क्या, आपको डिबेंचर वापस लेना है डिबेंचर होल्डर से एंड 100 रुपीज देना है उनको. तो 100 रुपीज देने की जगह आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका शेयर एक 10 रुपए का है, तो आप क्या करोगे, एक डिबेंचर की जगह उनको 100 रुपए देने की जगह 10 शेयर्स दो. तो इसमें बोनस एलिमेंट कुछ नहीं है. आपका जो लायबिलिटी था डिबेंचर होल्डर्स के लिए, वो आप शेयर्स इशू करके, हाँ, सो नो बोनस एलिमेंट, ऐसे उन्होंने लिखा है. So these shares will not usually give rise to a bonus element since the potential equity shares will usually have been issued for full value, resulting in a proportionate change in the resources available to the enterprise. So इससे क्या होगा, देखो डिबेंचर्स आपने रिडीम कर दिए, तो अभी आपको इंटरेस्ट पे करना है क्या फ्यूचर में ऑन डिबेंचर्स? नहीं, डिबेंचर्स आपने रिडीम कर दिए तो अभी इंटरेस्ट नहीं पे करना है, तो आपके अर्निंग्स बढ़ जाएंगे ना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. ओके, सो कन्वर्जन से क्या होता है, देयर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन रिसोर्सेज. ठीक है, इसलिए इस केस में आपको प्रीवियस ईयर का भी ईपीएस चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अलग ही था, करंट ईयर का अलग है रिसोर्सेज. बोनस इशू, स्प्लिट इशू, मतलब शेयर स्प्लिट, रिवर्स ऑफ शेयर स्प्लिट, राइट इशू, जहां पर बोनस एलिमेंट आता है, सो देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स बट देयर इज नो चेंज इन द रिसोर्सेज. तब आपको प्रीवियस ईयर का भी ईपीएस चेंज करना पड़ेगा, इधर नहीं करना है. सो इन अ राइट इशू ऑन द अदर हैंड, द एक्सरसाइज प्राइस इज ऑफन लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स. फेयर वैल्यू मतलब जो मार्केट में प्राइस है, उससे कम प्राइस में हम शेयर्स देते हैं एम्प्लॉयज को वगैरह. ओके, सो एम्प्लॉयज से हमने 6 रुपीज लिए, मार्केट का रेट है 10 रुपए, तो दैट एक्सरसाइज प्राइस 6 इज ऑफन लेस देन द फेयर वैल्यू. तो जो 4 रुपए इज अ बोनस एलिमेंट, देयरफॉर अ राइट इशू यूजुअली इंक्लूड्स अ बोनस एलिमेंट. क्लियर हुआ ये? सो राइट इशू के केस में बोनस एलिमेंट अगर है तो प्रीवियस ईयर का ईपीएस क्या करना पड़ेगा? हाँ, करेक्ट, मतलब राइट इशू में भी करना पड़ेगा, बोनस इशू में भी करना पड़ेगा. Thus, it may be noted that if a company makes a right issue at fair value itself, then there will be no bonus element in the right issue. फिर previous year का change नहीं करना है. ओके, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर ऑल पीरियड्स प्रायर टू द राइट इशू इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द इशू मल्टीप्लाइड बाय द फॉलोइंग एडजस्टमेंट फैक्टर. ओके, सो राइट इशू में पूरा बोनस एलिमेंट नहीं है, थोड़ा ही बोनस एलिमेंट है. तो वो जो थोड़ा ही बोनस एलिमेंट है उसके लिए ये एडजस्टमेंट फैक्टर है. ओके, सो ये एडजस्टमेंट फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू. आपके पास जितने थे नंबर ऑफ शेयर्स प्रायर टू राइट इशू. ओके, राइट इशू करने से पहले आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, फॉर एग्जांपल 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो उस 1 लाख को मल्टीप्लाई करना है किससे? इस फैक्टर से. वो फैक्टर क्या है देखो, फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स. सो जो राइट एक्सरसाइज होने के पहले आपके पास 1 लाख शेयर्स थे, उसकी फेयर वैल्यू आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, तो वो फेयर वैल्यू न्यूमरेटर में लेनी है, फेयर वैल्यू पर शेयर लेनी है. फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ द राइट डिवाइडेड बाय theoretical x right fair value per share.
ओके, सो दोनों फेयर वैल्यू पर शेयर ही है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, बट वो जो फेयर वैल्यू है ऊपर की वो कौन सी है, बिफोर राइट इशू वाला जो शेयर्स आपके पास है 1 लाख, उसकी फेयर वैल्यू जो मार्केट से मिलेगी। एंड डिनोमिनेटर में जो फेयर वैल्यू पर शेयर है वो थेरोटिकल आप कैलकुलेट कर रहे हो, थेरोटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। एक्स राइट मतलब इंक्लूडिंग राइट का या एक्सक्लूडिंग राइट, एक्सक्लूडिंग, हाँ, एक्स राइट कम राइट, ये इन्वेस्टमेंट्स टॉपिक था, देखो उसमें था। ओके, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, एक्स राइट कम राइट। सो एक्स राइट मतलब विदाउट राइट जो फेयर वैल्यू आ रही है आपने कैलकुलेट की हुई, एंड जो एक्चुअल में है वो न्यूमरेटर में। सो द थेरोटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर इज कैलकुलेटेड by adding the aggregate fair value of the shares immediately prior to the exercise of the rights to the proceeds from the exercise of the right and dividing by the number of shares outstanding after the exercise of the right. So numerator में क्या क्या आएगा, the theoretical x right fair value per share, पर शेयर मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, फेयर वैल्यूज आ रहे हैं। टोटल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करोगे आप तो आपको फेयर वैल्यू पर शेयर मिलेगा। तो जो न्यूमरेटर में आपको फेयर वैल्यूज लेने हैं वो किसके लेने हैं, देखो ऐड करना है आपको, क्या ऐड करना है, एग्रीगेट फेयर वैल्यूज ऑफ द शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स टू द प्रोसीड्स, किसमें, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स बिफोर राइट प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स। सो प्रोसीड्स क्या आएंगे, 6 रुपए आने वाले पर शेयर। राइट इशू करके आपको जो प्रोसीड्स मिलने वाले हैं वो कम मिलने वाला है, किससे कंपेयर कर रहे हो आप, लेस दैन फेयर वैल्यू। सो 6 रुपए ही मिलने वाले हैं राइट इशू से, वो दोनों को ऐड करना है। मतलब जो 1 लाख शेयर्स थे उसकी टोटल फेयर वैल्यू, हमने फेयर वैल्यू 10 ली थी, सो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख प्लस प्रोसीड 6 रुपीज पर शेयर आए। अभी राइट इशू भी आपने 1 लाख किया है 1:1, तो वो 6 लाख आएंगे ना। सो 10 लाख प्लस 6 लाख 16 लाख, एंड नीचे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 2 लाख। So 16 lakh upon 2 lakh, 8 is the theoretical X right fair value per share. Okay, so illustration 4 देखो, compute basic EPS, net profit again previous year and current year का दिया है। ओके, आपको समझा होगा रीजन प्रीवियस ईयर का क्यों दिया है, क्योंकि वो चेंज होने वाला है, राइट इशू है, सो बोनस एलिमेंट है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू कितना है, 5 लाख शेयर्स है, राइट इशू प्राइस है 15, जो मार्केट प्राइस से कम है क्या, देखते हैं आगे देखते हैं। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट्स दिया है 1 मार्च, राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग। सो 5 लाख शेयर्स है तो हाँ 1 लाख न्यू शेयर्स आएंगे, करेक्ट। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स ऑन 1 मार्च 2002 वाज 21। सो बोनस एलिमेंट कितना है, 6, हाँ क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस है 15। सो कंप्यूट बेसिक ईपीएस। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे थेरोटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। So fair value of shares immediately prior to exercise of rights, 5 lakh shares into 21 plus 1 lakh shares into 15 divided by 6 lakh. तो theoretical x right fair value per share आ गया 20, एंड फिर वो फैक्टर निकालो, फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट इज 21 अपॉन 20, सो 1.05 से मल्टीप्लाई करना है। सो प्रीवियस ईयर का देखो 11 लाख था, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
5 लाख, ये ओरिजिनल ईपीएस था प्रीवियस ईयर का, अभी रीस्टेट कर दिया ईपीएस, सो 11 लाख अपॉन 5 लाख इंटू वो फैक्टर लगाना है ना 1.05, तो 2.10 हो गया। ठीक है, फाइव लाख इंटू 1.05 क्या आ रहा है अमाउंट? 5,25,000। ओके, 2.25 ओके, हाँ हाँ ओके, हाँ ओके ओके ओके। सो ऊपर 21 था ना फेयर वैल्यू जो मार्केट से आया हुआ है, ओके, एंड हमारा थेरोटिकल कितना आया? 20। हाँ हाँ, 1.05। हाँ, सो इसका लॉजिक देखो क्या है, ओके, 21 अपॉन 20, हाँ 21 एक्चुअल फेयर वैल्यू थी, 20 हमने निकाली हुई फेयर वैल्यू है। सो आपके पास बिफोर राइट इशू 5 लाख शेयर्स थे, करेक्ट? सो 5 लाख इंटू 21, 1 करोड़ 5 लाख, ये वैल्यू है, फेयर वैल्यू है किसकी? आपके पास जो 5 लाख शेयर्स है उसकी टोटल फेयर वैल्यू है। सो 5 लाख इंटू 21, बट आपने जो फेयर वैल्यू निकाला है एक्स राइट, थेरोटिकल एक्स राइट, वो 20 है, सो डिवाइडेड बाय 20 करो। हाँ, तो अगर फेयर वैल्यू 21 ली जो मार्केट से आपको मिली है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख है, बट आपका दिया हुआ जो आपका निकाला हुआ थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस आई थी 20, वो अगर आपने लिया तो नंबर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं 5,25,000। ओके, आपका जो प्रॉफिट है वो 11 लाख ही रहने वाला है, बिफोर राइट इशू आफ्टर राइट इशू, तो वो दोनों जगह पे 11 लाख ही है। सो अगर लास्ट ईयर में तो राइट इशू रिलेटेड कुछ नहीं था, तो लास्ट ईयर आपने ईपीएस सिंपली निकाला 11 लाख अपॉन 5 लाख, बट करंट ईयर में राइट इशू आया, उसमें बोनस एलिमेंट है, सो उसकी वजह से प्रीवियस ईयर का भी आपको ये करना पड़ेगा कि अभी जो 5 लाख शेयर्स है वो 5 लाख नहीं रहे, अभी वो 5,25,000 हो गए। ओके, कैसे 5,25,000 हो गए? कि वो फैक्टर की वजह से। सो लास्ट ईयर का रीस्टेट करना पड़ा, 2.10 करना पड़ा। क्लियर हुआ? सो अभी आप कंपेयर करते वक्त प्रीवियस ईयर के साथ कौन सा वाला ईपीएस लोगे, 2.20 या 2.10? 2.10, 2.10 वाला लोगे ना कंपैरिजन के लिए, रीस्टेट किया हुआ, क्योंकि उसमें जो बोनस एलिमेंट है 6 रुपीज का बोनस, 6 रुपीज फ्री मिला ना, तो वो बोनस एलिमेंट की वजह से वो नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़े हैं देखो, 6 लाख हो गए है ना। ओके, बट जो 1 लाख शेयर्स आपने नए इशू किए वो पूरा बोनस नहीं है। हाँ, क्योंकि 1 लाख शेयर्स के आप 15-15 रुपए ले रहे हो। ओके, सो एक्चुअली आपने 21 लेने चाहिए थे, 21 लाख लेने चाहिए थे ना सबसे, बट आपने 15 लाख लिए। सो 6 लाख का आपको कहाँ से देना पड़ेगा? आपके जनरल रिजर्व से। ओके, इसलिए लास्ट ईयर आपके शेयर्स 5 लाख से 6 लाख नहीं हुए, 5 लाख से 25,000 ही हो गए, जो पेड वाला पार्ट है।
सॉरी जो बोनस वाला पार्ट है 25,000। एंड करंट ईयर का ईपीएस देखो कैसे करना है। अभी करंट ईयर में राइट इशू की डेट देखना रिक्वायर्ड है। राइट इशू कब हुआ है? 1 मार्च। इनका ईयर एंड क्या है? हाँ, एक ही ईयर दिया है ना। हाँ, सो इन्होंने 1 मार्च के बाद मतलब 10 मंथ्स के लिए राइट इशू था, एंड उसके पहले जो 2 मंथ्स थे तब राइट इशू नहीं था बट बोनस एलिमेंट था। तो जो पहले के 2 मंथ्स है उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स आपके हो जाएंगे 5 लाख इंटू 1.05 वाला फैक्टर, मतलब वो 5,25,000 होता है। हाँ, बट वो 5,25,000 शेयर्स 2 मंथ्स ही थे आपके पास, इसलिए 2/12। एंड उसके बाद 10 मंथ्स के लिए 6 लाख शेयर्स, 6 लाख इंटू 10/12। हाँ, 5 लाख। हाँ, मतलब टोटल इज 5,87,500। हाँ, एंड प्रॉफिट दिया होगा ना करंट, डिवाइडेड बाय 5,87,500। सो जब तक, हाँ, राइट इशू के बाद तो इजी है, 5 लाख प्लस 1 लाख। राइट इशू के पहले वो फैक्टर लगता है। ओके, फैक्टर जो आप निकाल रहे हो 21/20, वो फैक्टर किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, एंड वो फैक्टर निकालने के लिए ऊपर तो फेयर वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी है, डिनोमिनेटर में क्या है? थेरोटिकल एक्स राइट, फेयर वैल्यू पर शेयर। वो कैसे निकालनी है? तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स प्रायर टू एक्स राइट प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम, हाँ, प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब वो 6 लाख। सो उसके वर्डिंग्स कैसे लिखने हैं? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स प्लस टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्सरसाइज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू एक्सरसाइज प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन द एक्सरसाइज। इससे आपको मिलेगा थेरोटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। ओके, सो ये बार बार ऐसे बोल के आपको याद हो जाएगा। आई थिंक राइट इशू वाला आने के बाद ही ईपीएस थोड़ा लगता है ना, बट वो प्रैक्टिस करके एंड लॉजिक लगा के आपको आ जाएगा। डाइल्यूटेड नहीं करते, पहले बेसिक का ही देखते हैं। डाइल्यूटेड के लिए भी आपको डाइल्यूटेड अर्निंग सीखने होंगे। पर शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन, वो सीखना पड़ेगा। डाइल्यूटेड ईपीएस इन केस ऑफ शेयर ऑप्शंस एंड डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आपको पता है कौन से। इन केस देयर आर मोर देन 1 पोटेंशियल इक्विटी शेयर, रीस्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। सो हम पहले बेसिक ईपीएस वाले क्वेश्चंस करेंगे क्या? एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू 1 हम कर सकते हैं। उसमें क्या करना है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 दिसंबर। वेटेड एवरेज आप दोनों की मेथड अलग है। हाँ, तुम बैलेंस से कर रहे हो एंड तुम रिस्पेक्टिव। So AB Company Limited had 1 lakh shares of common stock outstanding on January 1. Additional 50,000 shares were issued on July 1 and 25,000 shares were reacquired मतलब buyback on September 1. Year end 31 December है। So करो अपना करो।
1,16,667. सो पहले हार्दिका के मेथड से बताती हूँ क्योंकि मुझे भी वही इजी जा रहा है. 1 लाख शेयर्स आपके पास है 12 मंथ्स के लिए. सो 12 इंटू 12/12. बट मुझे बोलना ही पड़ता है ऑनलाइन के लिए. उसके बाद जो 50,000 शेयर्स इशू किए वो कब किए? 1 जुलाई. 6 मंथ. तो उसका आपने क्या किया? 50,000 इंटू इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12. एंड जो 25,000 शेयर्स रीएक्वायर मतलब बाय बाय, तो उसके कितने मंथ्स थे? 4/12. सो वो माइनस किया. सो ये दोनों के जो कैलकुलेशंस आए 1 लाख एंड 50,000 के वो ऐड करने हैं और उससे वो माइनस करना था. 1 लाख plus 25,000 minus 8,323 which is equal to 1,50,660. हाँ करेक्ट. सो पहले का कैलकुलेशन 1 लाख आया, 12/12 था ना वो. 50,000 इंटू 6/12 मतलब 25,000 एंड 25,000 इंटू 4/12 मतलब 8,333. एंड बायबैक था इसलिए ये वाला अमाउंट आपने माइनस किया. अगर वो भी इशू रहता तो तीनों ऐड हो जाते. अभी बैलेंस में कैसे करना है कि 1 लाख 6 मंथ्स के लिए था, देन 1,50,000 जुलाई एंड अगस्त. जन सो 1 लाख 6 मंथ्स के लिए था. फिर 1,50,000 जुलाई एंड अगस्त के लिए था. एंड देन सितंबर से 1,25,000 था. सो क्या करना है फिर? सब ऐड करना है ना. इसके केस में सब ऐड करना पड़ेगा या ये लेस होगा? नहीं मैम, वो शेयर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही माइनस किए ना. 1,50,000 से 1,25,000 कर दिए ना. तो सब तीनों ऐड होगा. तीनों ऐड ही होगा ना. शेयर्स बस लेस हो जाएंगे लास्ट वाले जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होगा. मतलब तीनों ऐड ही करना है क्योंकि हम बैलेंस निकाल रहे हैं इधर, और वहां पे पर ट्रांजैक्शन था इसलिए ये बायबैक है तो माइनस, इशू है तो प्लस. ठीक है. सेकंड आएगा क्या? डाइल्यूटिव है नहीं. थर्ड ये आ जाएगा. एज पर एज 20 इक्विटी शेयर्स विच आर इशूएबल अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टन कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स आर contingently issuable shares. BB contractual issued shares. कहाँ पर सुना आपने? मैंने तो फर्स्ट टाइम ऑप्शन में सुना. जाओ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के पैराग्राफ पे, पेज नंबर ढूंढो. 4.93. डी पॉइंट में सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टन कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स. कॉन्टिंजेंटली इशूएबल चाहिए ना, वो भी लॉजिक लगाओ. वहां पर इशूड शेयर्स लिखा है, कॉन्ट्रैक्चुअल इशूड शेयर्स ऐसे लिखा था ना. इशूएबल चाहिए ना, अभी तो सेटिस्फाई नहीं हुए कंडीशन. सो इशूएबल, कॉन्टिंजेंटली इशूएबल. थर्ड किया ना. फोर्थ भी डाइल्यूशन रिलेटेड है. फिफ्थ बताओ. पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स आर हे नाही आलं ना. करेक्ट. तुम्ही 10 वेळा चलावलंस ना. सो पार्टली पेड अप इक्विटी शेअर
आर ऑलवेज कंसिडर नहीं है। ए नहीं था मैडम, हाँ बी और सी। हाँ, बी और सी अभी पढ़ा ना हमने, डिपेंडिंग अपॉन द एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। अगर एंटाइटल है तो ही कंसिडर करना है, एंटाइटल नहीं है तो पोटेंशियल है वो। डिपेंडिंग अपॉन द एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। एंटाइटल टू डिविडेंड है तो लेना है, पार्टली पेड अप। नहीं है तो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ओके, एंटाइटल टू डिविडेंड है, हमने एग्जाम्पल देखा था 600 शेयर्स पे 5 पेड अप है, मतलब टोटल आपको 3000 रुपीज मिले हैं, डिवाइडेड बाय 10, मतलब उसको 300 शेयर से लेंगे हम। हाँ, 6th वाला बताओ अभी। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ शेयर्स इशूड for the purpose of calculation of weighted average number of shares, from which date weight is to be considered. Equity shares issued in exchange of cash. Cash? The date on which receivable and received में फर्क है। हाँ, receivable, हाँ, equity shares issued as a result of conversion of debt instrument, date of conversion, in exchange for the settlement of a liability of the enterprise, date of settlement, for rendering of services, correct, in lieu of interest and or principal of an other financial instrument, ceases to accrue. हाँ, सिर्फ डेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? डेट ऑफ इंटरेस्ट सीजेस टू एक्रू फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अदर देन इनकम, द डेट ऑन विच एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड, ऑल्सो डिफाइन पोटेंशियल इक्विटी शेयर। वो ABCD ना एग्जाम्पल्स, शेयर वारंट्स, उसके बाद ईसॉप ऑप्शंस, मतलब हाँ, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंसेस, एंड ये कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर एंड पार्टली पेड अप शेयर दैट आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। एटलीस्ट एग्जाम्पल्स तो लिख के आ जाओ। ओके, मैं डेफिनेशन नहीं एक्सपेक्ट करूंगी क्योंकि आपको सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो ऐसे एग्जाम्पल्स भी लिखोगे तो मार्क्स देगा वो, चेक कर। डेफिनेशन उनकी एक्चुअली कैसे है? 4.93 ना, 4.93। हाँ, potential equity share is a financial instrument or other contract that entitles or may entitle its holder to equity share. एंड देन ये एग्जाम्पल्स थे, इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट और अदर कॉन्ट्रैक्ट दैट एंटाइटल्स और मे एंटाइटल इट्स होल्डर टू इक्विटी शेयर। सेवन आ जाएगा क्या? डाइल्यूटेड है ना, मत करो 7। Explain why the bonus issue of shares and the shares issue at full market price are treated differently in the calculation of basic EPS. Full market price पे जो shares issue होते हैं उसमें there is a change in resources and bonus issue में there is no change in resources. So उनका आंसर कैसे लिखा है देखते हैं। 4.115 पेज पे आ जाओ। In case of bonus issue, equity shares are issued to existing shareholders for no additional consideration. मतलब मीनिंग लिखना है पहले। Therefore, the number of equity shares outstanding is increased without an increase in resources. Since the bonus issue is an issue without consideration, the issue is treated as if it had occurred prior to the beginning of the earliest period reported.
However, the shares issued at full market price does not carry any bonus element and usually results in a proportionate change in the resources available to the enterprise. Therefore, it is taken into consideration from the time it has been issued. That is, the time weighting factor is considered based on the specific shares outstanding as a proportion of the total number of days in the period. So जिस दिन इशू किए उस दिन से लेना है ना, अगर फुल मार्केट प्राइस पे किया तो, एंड यहाँ पर एज्यूम करना है कि दे आर इशूड प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड, मतलब प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग से पहले बोनस इशू हुआ है ऐसे एज्यूम करना है। रीजन क्या है डिफरेंटली ट्रीट करने का, क्योंकि बोनस में देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेज एंड यहाँ पर देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज। 9 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें सिर्फ बेसिक ईपीएस है, क्या चेक करो। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस नहीं, एक्सप्लेन नहीं, 9th में 9 का क्वेश्चन पढ़ो ना। कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनएटी और नैट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव फिगर इन अकॉर्डेंस विद AS20 EPS. Explain why bonus issue of shares and the shares issue at full market price are treated differently in the calculation of basic EPS. तो वो आपको आ जाएगा लिखने को, बी वाला पार्ट, रोमन 2। एंड आप जब आंसर्स लिखते हो तो ए बी ऐसे नहीं लिखना है, इधर अगर रोमन 1 रोमन 2 लिखा है क्वेश्चन में तो आंसर में भी रोमन 1 रोमन 2 ही लिखना है। एंड ये स्मॉल रोमन 1 2 है या कैपिटल रोमन 1 2 है, स्मॉल, तो स्मॉल ही यूज करना है आंसर्स लिखते वक्त भी। मतलब आप ए बी यूज नहीं कर सकते, कैपिटल रोमन 1 2 यूज नहीं कर सकते, नॉर्मल 1 2 भी यूज नहीं कर सकते, आपको यही रोमन 1 2 यूज करने हैं। सो चेकर को समझेगा कि रोमन 1 का ये आंसर, रोमन 2 का ये। सो आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, एनएटी लिस्टेड एंटिटी है। एज ऑन 1st April 2001 दे हैड अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। 10 लाख इक्विटी शेयर्स है उनके पास जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपया है, इसलिए रुपीज भी 10 लाख। एंड 10 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर्स भी है हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10, तो उसकी अमाउंट हो गई 1 करोड़। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 मतलब जो करंट ईयर है, द कंपनी हैड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 लाख का प्रॉफिट है। ऑन 1st Jan 2002 NAT made a bonus issue of 1 equity share for every 2 equity shares outstanding as on 31st December 2001. कितना मिलेगा, 1 इक्विटी शेयर फॉर 2, सो 10 लाख है तो कितने मिलेंगे, 5 लाख, हाफ ना। जिसके पास 2 है उसको 1 मिलेगा। 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर, 2 जिसके पास शेयर्स है उसको 1 मिलेगा। 10 लाख शेयर्स है तो 5 लाख, सो टोटल कितना हो गया, 15 लाख। ये डिनोमिनेटर हुआ। ऑन 1st Jan 2002 NAT issued 2 lakh equity shares of ₹1 each at their full market price of ₹7.60 per share. तो ये जो 2 लाख नए शेयर्स इशू किए उसको टाइम वेट फैक्टर लगेगा, बोनस को नहीं लगता है, वो तो बिगिनिंग से है ऐसे हम एज्यूम करेंगे। सो पहले डिनोमिनेटर में 10 लाख थे, बोनस के 5 लाख से 15 लाख आ गए। अभी ये 2 लाख इशू किए, बट वो कितने मंथ्स के लिए है, 3 मंथ्स, जैन फेब मार्च। तो करो 2 लाख इंटू 3/12 मतलब 1/4 ना, 50,000। तो पहले के 10 लाख, फिर बोनस 5, फिर अभी 15 लाख 50,000 तक आ गए। हाँ हम
NAT shares were trading at rupees 8.05 per share on 31st March 2002. ये उन्होंने शेयर ट्रेडिंग मतलब मार्केट प्राइस दिया है आपको. Further, it has been provided that the basic EPS for the year ended 31st March 2001 was previously reported at rupees 62.30. So last year का original basic EPS था 62.30. ओके. सो लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है क्या आपको? 90 लाख लास्ट ईयर का है या करंट ईयर का है? बट लास्ट ईयर का आप निकाल सकते हो. आपको ईपीएस दिया है ना लास्ट ईयर का 62.30. हाँ, और ये कितने होंगे नंबर ऑफ शेयर्स? हाँ, सो इनटू करो ना 30 into 10 lakh. 6 crore 23 lakh. Confirm? इतना प्रॉफिट था और अभी 90 लाख हो गया. है बट अभी क्या है ना, है वैसा ही है ना. तो ही 62.30 आएगा. 6 crore 23 lakh डिवाइडेड बाय 10 लाख करोगे तो ही 62.30 आ रहा है ना. सो ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मतलब आपको न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर 15 लाख. लास्ट ईयर का रीस्टेटेड. सो दिस इज 20x1 का रीस्टेटेड ईपीएस बताया आपने. ओके. अभी 2002 का आपने करेक्ट बताया कि 90 लाख प्रॉफिट है बट वो आफ्टर टैक्स है, इससे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा. सो प्रेफरेंस डिविडेंड में क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव देखा था हमने. तो क्यूमुलेटिव अगर है तो प्रोवाइड किया है, नहीं किया है तो भी आपको लेस करना ही पड़ता है. एंड नॉन क्यूमुलेटिव में प्रोवाइड किया है बुक्स में तो ही लेस करना है. तो हम इसको नॉन क्यूमुलेटिव एज्यूम करेंगे. सो हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. सो 1 करोड़ पे 8% माइनस करो 90 लाख से. 82 लाख आपका न्यूमरेटर हो गया. $15 lakh 50,000. 50,000 वो नए शेयर्स जो इशू किए उससे आ रहे थे ना, वो 3 मंथ्स के लिए थे ना आपके पास. 5.29 आया. चेक करो, आंसर चेक किया. सो आपको कंपेयर करना है 41.53 से आप 5.29. हाँ, उतना उनका अर्निंग ही कम हुआ ना. 6 करोड़ से कहाँ पे वो 90 लाख पे आ गए. ओके, ईयर भी 2001-2. ये कौन सा किया हमने? 9. बी वाला पार्ट, रोमन 2 वाला पार्ट आपको आता है. अभी राइट इशू ट्राई करना है क्या? 10th में राइट इशू है ना. हाँ,
So X Limited supplied following information. You are required to compute basic EPS. Accounting year उन्होंने क्या दिया है, Jan to December. Net profit, so 2001 is previous year, current year is 2002. फिर number of shares outstanding prior to right issue 10 lakh. Right issue कैसे किया है, 1 new share for each 4 share outstanding. So 10 lakh upon 4. So 2,50,000 right issue हुआ है. Right issue price है 20. Last date of exercise of right is 31st March and fair rate of 1 equity share immediately prior to exercise of right is 25. So सबसे पहले हमें निकालना है theoretical X right fair value per share. So पहले आपके पास 10 लाख शेयर्स थे, उसकी फेयर वैल्यू थी 25. So 25 लाख प्लस 25 लाख, ये प्रायर वाला हुआ. प्रोसीड्स फ्रॉम, टोटल प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2,50,000 इंटू 20 ना. सो ये न्यूमरेटर आ गया ना 75 लाख एंड डिनोमिनेटर में सारे शेयर्स लेने, मतलब 12,50,000 लेने हैं. सो theoretical X right fair value per share is 6. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या लिया पहले, 25 लाख कैसे, 10 लाख शेयर्स इंटू 25. सो वो 2,50,000 शेयर. हाँ, सो पहला वाला 10 लाख इंटू 25 वो 2 crore 50 लाख होना चाहिए. हाँ हाँ आ गया. हाँ करेक्ट. 3 crore आया divided by 12,50,000. So theoretical X right fair value, theoretical X right fair value पर शेयर आया 24. फिर फैक्टर के लिए फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट. क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वैसे के वैसे ही लिखो. ओके यहाँ पर नहीं है प्रोजेक्टर चालू. सो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट डिवाइडेड बाय theoretical X right फेयर वैल्यू पर शेयर. सो आपने क्या किया, 25 अपॉन, सो एग्जैक्टली क्या लेना है आपको, 1.04. सो मैं फैक्टर ले रही हूँ 1.04. ओके, सो लास्ट ईयर का भी ओरिजिनल ईपीएस बताओ मुझे. 20 लाख अपॉन 10 लाख. मैं यहाँ पर लिखती हूँ ओरिजिनल ईपीएस, हाँ 2. एंड देन आपको 10 लाख को मल्टीप्लाई करना है ना, रीस्टेटेड. रीस्टेटेड के लिए 10 लाख इंटू 10,40,000. हाँ 1.9. मतलब उन्होंने 1.9 एक ही दिया है क्या, ये फैक्ट. ओ हाँ ठीक है 1.92 ये रीस्टेटेड ईपीएस हुआ ना. ओके अभी इनका राइट इशू, अभी करंट ईयर में आ जाओ. राइट इशू कब हुआ है, 31st मार्च एंड ईयर है जैन टू दिसंबर. सो पहले 3 मंथ्स के लिए राइट इशू नहीं था तो वो फैक्टर लगाना है.
10 लाख इंटू 1.04 मतलब 10,40,000. हाँ, सो 10,40,000 आपके पास 3 मंथ्स के लिए थे. एक मिनट. 10,40,000 इंटू फैक्टर लगा के ही 10,40,000 आया है. हाँ, तो फैक्टर लगाना है तो 10 लाख को फैक्टर लगाओ. 10 लाख इंटू 1.04 इंटू 3/12 एंड आफ्टर राइट इशू कितना हुआ 12,50,000 इंटू, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हुए 11,97,500 एंड न्यूमरेटर क्या है? This is for 3 months before right issue. This is for 9 months था ना आफ्टर राइट इशू. ओके, ये ऑडिट लॉ जैसा है. हाँ, मतलब क्या ऑडिट लॉ जैसा मतलब गैप हुआ तो भूल जाते हैं हम क्या कर रहे. अभी इजी लग रहा है. हाँ, ये ऐसे ही करना था क्या. एंड देन आप जब इसकी रिवीजन बंद करोगे तब क्या किया था, ये थेरोटिकल एक्स क्या होता है. हाँ, नहीं ऐसे नहीं करना है. हाँ, लॉजिक लगा के करो. हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा देर ओके. हाँ क्वेश्चन ये है, कोई टेंशन नहीं है. सो क्या आया ईपीएस? 2.51 हाँ, 2.51 बट त्यांनी 1 घेतलं कारण की पुढे 5 आहे. थर्ड डिजिट इज. हाँ, इलस्ट्रेशन 4 झाला है अपना. अभी किया. हाँ 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 हाँ, यस, वही फर्स्ट किया था ना. हाँ, एक्सरसाइज का क्या क्या किया? 9 है, 10. हाँ हाँ, 11 में क्या कंप्यूट करना है? बेसिक ईपीएस है फॉर 31st मार्च. सो ऑन 1st April 2001 अ कंपनी हैड 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. 5 पेड अप है बाय ऑल शेयर होल्डर्स. तो आपके पास एक्चुअली 3 लाख ही फुल्ली पेड है. ऑन 1st September 2001 द रिमेनिंग 5 वॉज कॉल्ड अप and paid by all shareholders except one shareholder having 60,000 equity shares. The net profit for the year ended 31st March 2002 was 21,96,000 after considering dividend on preference shares of ₹3,40,000. So preference dividend माइनस करके दिया है क्या आपको? हाँ, तो वही न्यूमरेटर में लेना है 21,96,000 एंड ईयर एंड 31st मार्च है. सो अप्रैल टू 1st सितंबर 5 मंथ्स होते हैं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. तो 5 मंथ्स के लिए आपके पास 3 लाख इक्विटी शेयर्स थे. फिर फुल्ली पेडअप कब हुआ? वो 1 सितंबर से. बट कितने शेयर्स पे? 5,40,000 शेयर्स फुल्ली पेडअप हो गए ना. कब से? फर्स्ट मतलब 7 मंथ्स के लिए 5,40,000 लो. एंड वो जो 60,000 है जिन्होंने नहीं दिए तो उनका 30,000 ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमने कॉल किया बट उन्होंने पे नहीं किया ना 5 रुपया. तो उनके आपको 60,000 नहीं कंसिडर करना है, उनके 30,000 ही कंसिडर करना है फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स. ओके, सो कैसे कैसे आएगा? पहले 5 मंथ्स के लिए कितने थे? हाँ, तो करो 3 लाख इंटू 5/12 1,25,000. फिर 5,40,000 शेयर्स पे पूरे पैसे आ गए. सो 5,40,000 इंटू 7/12 एंड जो 60,000 शेयर्स है उसका आप 30,000 लो. ये आपके पास थे 7 मंथ्स के लिए. सॉरी 12.
हाँ, हम पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना। हाँ, तो पहले 3 लाख हमने लिया 5 मंथ्स के लिए। 7 months. हाँ, फिर ये लिया 5,47,000 मंथ्स के लिए, क्योंकि ऊपर 5 ही मंथ्स लिए ना, तो 5 हो गए लेके, तो यहाँ पर 7 ही लो, तो 30,000 से 7 मंथ्स। हमने इसकी हार्दिका की मेथड लगाई है। तुम टोटल करने वाले हो क्या, या ऐसे ही पर ये? हाँ, तो पहले कितना था, 3 लाख थे 5 मंथ्स के लिए, 5,40,000 थे 7 मंथ्स के लिए, फिर 30,000 थे 7 मंथ्स के लिए। मतलब तुम भी उसी मेथड पे कैलकुलेशंस कर रहे हो। ये क्या हुआ सबकी एडिशन करने के बाद? हाँ, डिनोमिनेटर 457,500, न्यूमरेटर क्या है 21,96,000 डिवाइडेड बाय 457,500। चेक करो आंसर। एंड 12th चेक करो, बेसिक है या कैसे है? कंप्यूट डाइल्यूटेड मत करो। ओके, सो एक 5 मिनट ब्रेक लो, फिर डाइल्यूटेड देखते हैं। आपको ब्रेक नहीं चाहिए तो पढ़ो डाइल्यूशन का। हाँ, देन गो फॉर अ ब्रेक। पाँच मिनट ब्रेक लो ऑनलाइन स्टूडेंट। सो डाइल्यूटेड ईपीएस देखो, इन कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस इफेक्ट इज गिवन टू ऑल डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर that were outstanding during the period. That is, the net profit for the period attributable to equity share is Roman 1, 2, 3 is increased by the amount of dividend recognized in the period in respect of the dilutive potential equity shares as adjusted for any attributable change in tax expense for the period. So जो भी net profit है which is attributable to equity shareholder, वो increase करना है आपको by the amount of dividend recognized in the period in respect of dilutive potential equity share। मतलब क्या कि dilutive potential equity share यहाँ पर कौन सा होगा? एग्जाम्पल में से हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े dilutive potential equity shares के, उसमें एक कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स देखा था। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपके कन्वर्ट हो गए तो जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड आप लेस करते हो उनका वो अभी लेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करना है अगर ये इक्विटी में कन्वर्ट हुए तो आपका जो नेट प्रॉफिट है एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर वो इंक्रीज करना है बाय द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, सो नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। क्यों? क्योंकि इन रिस्पेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स इसमें कन्वर्ट होंगे इक्विटी में, उससे रिलेटेड जितना प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है वो आप क्या करोगे? ऐड करोगे, एंड उससे रिलेटेड जो भी टैक्स में चेंजेस होंगे वो भी ऐड बैक करेंगे। ओके, टैक्स चेंजेस जनरली इंटर लेवल को नहीं देते, सिर्फ आप डिविडेंड ही ऐड करते हो। ओके, सेकेंड, और क्या इंक्रीज करना है? देखो, नेट प्रॉफिट में ऐड करना है, क्या ऐड करना है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होंगे ना इन रिस्पेक्ट ऑफ द डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। सो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की। रोमन 1 में किसकी बात कर रहे थे? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स की। ओके, सो सेकेंड में जो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, सो उसके ऊपर का जो आपने इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड, मतलब जो बुक्स में रिकॉर्ड किया है वो इंटरेस्ट भी आपको ऐड करना है, क्योंकि इक्विटी में कन्वर्ट होने के बाद आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा,
उससे रिलेटेड टैक्स चेंजेस भी ऐड बैक करने। एडजस्टेड, दैट नेट प्रॉफिट इज एडजस्टेड फॉर द आफ्टर टैक्स अमाउंट ऑफ any other changes in expense or income that would result from the conversion of the dilutive potential equity shares. Okay, dilutive potential equity shares को इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद जो भी इनकम एक्सपेंस में चेंज होगा उस हिसाब से आप एडलेस करोगे। एक बार एग्जांपल्स बताओ डाइल्यूटिव के फिर से। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, शेयर वारंट, ऑप्शंस, contingently issuable shares and partly paid shares which are not entitled to dividend. ओके, तो इन सबको इक्विटी शेयर्स में ऐड करने के बाद नेट प्रॉफिट में आपको ये ऐड करते जाना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, और कुछ इनकम एक्सपेंस में चेंज होने वाला है तो वो इनकम है तो लेस होगा। पहले इनकम आ रहा था अभी नहीं आ रहा है तो लेस करो, पहले एक्सपेंस था अभी वो एक्सपेंस नहीं होने वाला है तो ऐड करोगे। ठीक है, वो क्वेश्चन में जैसे दिया है। एंड बी पार्ट देखो, द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड इज इंक्रीज्ड बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स विच वुड हैव बीन आउटस्टैंडिंग assuming the conversion of all dilutive potential equity shares. So हम weighted average number of equity shares भी इंक्रीज करेंगे, जैसे न्यूमरेटर इंक्रीज करेंगे वैसे weighted average भी इंक्रीज करेंगे। एंड वो किससे इंक्रीज करेंगे? आप एज्यूम करोगे जितने भी आपके पास डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है वो सब कन्वर्ट अगर हो गए इक्विटी में तो ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ेगा ना कि ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है, ये अगर इक्विटी शेयर्स में आ गए तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपका बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह बंद हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड बंद हो जाएगा, बट वो भी आपके साथ अर्निंग्स में शेयर लेंगे तो ईपीएस कम भी हो सकता है, उतना भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर द पर्पज ऑफ AS20 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और एनी एडवांस शेयर एप्लीकेशन मनी as at the balance sheet date which is not statutorily required to be kept separately and is being utilized in the business of the enterprise is treated in the same manner as dilutive potential equity share for the purpose of calculation of diluted EPS. So for example application money आपने रिसीव की है 25 मार्च को, 31 मार्च को ईयर एंड हुआ, आपने अभी तक शेयर्स ही अलॉट नहीं किए, शेयर्स अलॉट हुए नेक्स्ट ईयर में, तो वो जो एप्लीकेशन के पैसे आपके पास आ गए वो आप कहाँ पर रखते हो? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, ये हेडिंग होता है आप कहाँ पर? शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे। हाँ, थर्ड नहीं है वो शेयर कैपिटल नहीं बन गया, वो शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ इज करंट लायबिलिटी। ये सेपरेट हेडिंग है। ओके, वो शेयर होल्डर्स का फंड नहीं है अभी तक, अभी वो शेयर होल्डर ही नहीं बना है, आपने सिर्फ एप्लीकेशन मनी लेके रखा है, उनको अलॉट नहीं किए शेयर, सो वो सेकेंड हेडिंग है। सो उसमें जो पैसे आए हैं वो अगर आप बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया आपने विदाउट अलॉटिंग शेयर्स तो उनको भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि शेयर्स अलॉट होने के बाद वो भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने दिया है, सो वो भी हाईलाइट करो। सो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के लिस्ट जो आप बता रहे थे उसमें ये लोग भी आ गए, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वाले। एंड नोट एज मेंशन्ड अर्लियर, अ पार्टली पेड अप शेयर वेयर द होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड is treated as potential equity share for the purpose of computing diluted EPS. अभी earnings diluted में वही दिया है फिर से, for the purpose of calculating diluted EPS the amount of net profit or loss, मतलब loss हुआ तो भी per share दिखाना है ना, that loss is negative profit only. सो लॉस हुआ तो भी ईपीएस दिखाना है फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स
should be adjusted by the following after taking into account any attributable change in tax expense for the period. Any dividend on dilutive potential equity shares which have been deducted in arriving at the net profit attributable to equity shareholders. So any dividend on dilutive potential equity share मतलब any preference dividend on convertible preference shares. Then interest recognized in the period for convertible debentures. Okay, convertible debenture is an example of potential equity share. And any other changes in expense or income that would result from the conversion of dilutive potential equity share. Okay, कन्वर्जन होने की वजह से कोई इनकम अराइज हुआ तो ऐड करोगे, कोई एक्सपेंस अराइज हुआ तो लेस करोगे. आफ्टर द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, the dividends, interest and other expenses or income associated with those potential equity shares will no longer be incurred or earned. Instead, the new equity shares will be entitled to participate in the net profit which is attributable to equity shareholders. Therefore, the net profit for the period attributable to equity shareholders calculated in basic EPS is increased by the amount of dividend, interest and other expenses that will be saved and reduced by the amount of income that will cease to accrue on the conversion of dilutive potential equity shares into equity shares. So उन्होंने यहाँ पर reason दिया है why we are adjusting the net profit. The amount of dividend, interest and other expenses or income are adjusted for any attributable taxes also. Okay, so illustration 5 में diluted EPS अभी compute करना है. Net profit दिया है current year का 1 crore, number of equity shares outstanding है 50,000. So basic EPS आया 2. कैसे 1 crore upon 50 lakh. अभी नंबर ऑफ 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, आपके पास 1 लाख के कन्वर्टिबल डिबेंचर है एंड ईच डिबेंचर इज कन्वर्टिबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, मतलब वो हो जाएंगे 10 लाख. इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर 12 लाख एंड टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस 30% इज 3,60,000. ओके, सो देखो 12 लाख इंटरेस्ट एक्सपेंस था, वो माइनस करने के बाद अभी करेक्ट लेस होगा क्योंकि 12 लाख से आपका इनकम बढ़ेगा ना, अभी इंटरेस्ट नहीं देने वाले हो तो 12 लाख से इनकम बढ़ा तो उसके ऊपर का टैक्स 3,60,000 लेस करना पड़ेगा. सो नेट प्रॉफिट में आप क्या क्या कर रहे हो, 1 करोड़ में 12 लाख ऐड करोगे एंड 3,60,000 माइनस, तो 1 करोड़ 8,40,000. इक्विटी शेयर्स का क्या हुआ, पहले कितने थे 50 लाख थे, 10 लाख 60 लाख divided by 60 lakh. So dilutive is 1.81. Basic EPS 2 lakh. बट ये लोग भी आ गए तो 1.81 होगा, ये लोग कन्वर्ट हो गए तो ठीक है. ओके, आगे का और टेक्निकल है. अभी पर शेयर डाइल्यूटेड ईपीएस का डिनोमिनेटर का वो बात कर रहे हैं, फिर ऑप्शंस वाला बाकी है एंड देन डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स उन्होंने फिर से दिया है. इन केस देयर आर मोर देन 1 पोटेंशियल इक्विटी शेयर, रीस्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर. ओके, सो कल ये खत्म हो जाएगा. सो आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे सकती हूँ AS20 के, क्योंकि बहुत सारा पार्ट हो गया है. ओके, सो डाइल्यूटेड का
मैं पढ़ के देती हूँ क्योंकि पूरा डाइल्यूशन का नहीं हुआ है। सो कल AS20 कंप्लीट करके AS24 भी कंप्लीट करना है। ओके, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाला बहुत इजी है वो 24, एंड देन 25 फिर AS1 लेंगे एंड में। तो मॉड्यूल 1 के सारे AS हो गए। ओके, यस, चलो बाय बाय। हो हो हो